This conference will now be recorded. Let's start with NSG, Network Security Group. And I think we completed the part of Bastion as well. Yeah, Bastion का भी remaining है. Bastion's left अभी बाकी था. Okay. आज का एजेंडा रखते हैं NSG, Bastion और थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में. Okay, fine. ठीक है. So let's start from the NSG network की topic में, which is really important option because with the help of NSG we are able to manage the kind of inbound and outbound services. So NSG is considered as a network security group, right? हर एक cloud provider की बात करें, not only the Azure, if we talk about Amazon or Google Cloud, so both providers can set up our NSG. AWS के केस में ये सिक्योरिटी ग्रुप कहलाता है, Azure के केस में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहलाता है, और गूगल क्लाउड की बात करें तो सेम टॉपिक को हम बोलते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड, डायरेक्टली उन्होंने मेंशन कर रखा है. About the NSG, NSG is a type of service which is considered as a platform as a services, is a type of PaaS. So we can use our NSG for various purpose. We can use our NSG. We can connect our NSG to our virtual machine and directly to the subnets as well. मान लीजिए हमने यहाँ पे एक NSG क्रिएट किया है और NSG contain two important options. One is inbound and another is outbound. Inbound and outbound दो different features इसके available रहते हैं and both are responsible to perform a separate task. Inbound और outbound both के cases में they contain up to 65,535 logical ports. यहाँ पे भी 65,535 logical ports contain करके रखता है. It's our responsibility कि NSG का inbound और outbound work कैसे करेगा. So let me explain you about the NSG. आप इसको डायरेक्टली इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली सबनेट के साथ अटैच कर सकते हैं. So we can connect with the load balancer as well. A single NSG we can connect with our virtual machine, with our subnets और load balancer के साथ भी इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. But question is कि ये actual में है क्या? So you can say that the NSG works just like a virtual firewall. ये एक तरीके से virtual firewall की तरह काम करता है. For example, this is our firewall. Responsibility क्या होती है इसकी कि बाहर के आने वाले ट्रैफिक को मैनेज करना और जो आपके सिस्टम में है यहाँ से जो आउटबाउंड है, जो अंदर से ट्रैफिक आपका बाहर जाता है, इन दोनों चीजों को वो मैनेज करता है. इट वर्क जस्ट लाइक अ मीडिएटर बिटवीन आउटबाउंड एंड इनबाउंड. दोनों के केस में ये एज ए मीडियम काम करता है. इज दैट क्लियर? Yeah, I think that works on port and firewall works on IP address. Exactly, yes. ये लॉजिकल पोर्ट्स पे काम करता है, which is work on logical ports and protocol. Yeah, protocols. And with the help of firewall जो डिवाइस होती है उसके थ्रू हम अपनी IP एड्रेस के जरिए कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं कि इनबाउंड पोर्ट हमारी पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस पे लगना चाहिए. तो दिस इज द एक्चुअल यूसेज. लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल हाउ इट वर्क्स. तो इसके लिए वी जस्ट नीड टू ओपन आवर पोर्टल, Azure पोर्टल पे जाएंगे एंड वी जस्ट नीड टू क्रिएट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और उसको अलग अलग लोकेशन में ऐड करके देखते हैं. अलग अलग लोकेशन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप डायरेक्टली इंस्टेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं या आप अपने सबनेट के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट. टाइप NSG network security group. I'm going to create one network security group. यहाँ पे although I have already created two different NSG. जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जब भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अपने आप तैयार हो जाता है. बट वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट आवर ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. हम अपनी तरफ से भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डिजाइन कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द
existing NSG because we need to create a new and our own NSG. आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, it will redirect you on page of basic information जहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन की डिटेल और अपना कंटेनर प्रोवाइड करेंगे which is AVD class is our container. Let me choose our NSG. I'm going to proceed with class NSG. ठीक है, यहाँ पे हमने class NSG तैयार किया. Central US is our location. I don't want to create any kind of tags. Just need to click create and proceed. NSG को हम दोनों पॉइंट से ऐड करके चेक करेंगे कि हाउ इट्स वर्क विद सबनेट, या फिर हम एक पर्टिकुलर VM में अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा. NSG if you want to connect with VM, अगर हम वर्चुअल मशीन के साथ ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, और इसके साथ हम अपना क्लास NSG ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, so as we know that NSG में दो पॉइंट हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे. One is in and another is out. इनका मतलब यहाँ पे just opposite to name. इनका मतलब यहाँ पे अगर आप 3389 कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ना, so as we know that 3389 is up for RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के लिए. अगर आप इन पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो बाहर का जो बंदे हैं जो ये ऑन प्रोमाइसेस पे सिस्टम या लैपटॉप या मोबाइल फोन चला रहे हैं, अगर ये आपकी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं और इनबाउंड पे पोर्ट हमारा 3389 एक्टिव है, तो दे ऑल आर एबल टू एक्सेस द RDP. इज दैट करेक्ट? क्योंकि हमने 3389 को एक्टिवेट कर रखा है इन बाउंड साइड. मींस यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर सर्विसेज टू आउटसाइड द नेटवर्क. आउटबाउंड का मतलब ये होता है, आउटबाउंड में अगर आपने कोई पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है या फिर ब्लॉक कर रखा है, HTTPS या HTTP को अलाउ कर रखा है, तो इट मींस दैट जो वेब सर्वर है जैसे google.com या facebook.com है, ठीक है, यहाँ पे अगर इन साइट्स को आपका सिस्टम ओपन करना चाहता है ना, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम facebook.com google.com को आसानी से ओपन कर लेगा क्योंकि आपने आउटबाउंड पे HTTPS को अलाउ कर रखा है. जस्ट अपोजिट, आउटबाउंड मतलब बाहर की सर्विस को एंट्री देना, इनबाउंड मतलब अपनी सर्विस को बाहर को अलाउ करना. तो NSG अपने पास रेडी है, बट हमने इसमें कोई भी पोर्ट, अब देखिए इनबाउंड और आउटबाउंड कोई भी पोर्ट हमने नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है. बाय डिफॉल्ट हर एक पोर्ट 65,500 पोर्ट्स जो है डिनाइड है, और आउटबाउंड के केस में बाय डिफॉल्ट इस केस में भी 65,000 पोर्ट्स आपके डिनाइड है. NSG वी हैवंट एडेड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नहीं रहेगा. ये किसी भी नेटवर्क कार्ड से एसोसिएटेड नहीं है. नेटवर्क कार्ड से एसोसिएट करने का मतलब है कि आप किसी इंस्टेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं. किसी सबनेट के साथ अटैच करने का मतलब है कि आप बल्क मशीन को अलाउ करना चाहते हैं. तो हमने अपने केस में दोनों ही नहीं अटैच कर रखा. इज दैट क्लियर? चलो एक थोड़ा सा और, ये तो वर्चुअल मशीन्स की बात हो गई कि अगर आप VM के साथ NSG जोड़ना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक ही NSG को, जैसे हमने क्लास NSG बनाया, एक इंस्टेंस के साथ अटैच कर रखा, आप एक ही NSG को मल्टीपल इंस्टेंस के साथ जोड़ सकते हैं. इंस्टेंस पे या NSG पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. क्लास NSG एसोसिएटेड विद VM1, VM2, VM3, VM4 कितने भी वर्चुअल मशीन के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं. 3389 सभी के लिए एप्लीकेबल, HTTP HTTPS सभी के लिए एप्लीकेबल. जो सेटिंग होगी इसका इम्पैक्ट हर एक मशीन पे एक साथ पड़ेगा क्योंकि एक ही NSG है और इसको हमको मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ अटैच करना है. नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है NSG फॉर सबनेट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट.
NSG for subnet, as we know that जब भी आप VNet बनाते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम Azure VNet की बात करें, so Azure VNet के अंदर हमें IP एड्रेस असाइन करने होते हैं, which is considered as a एड्रेस स्पेस. मान लीजिए हमने यहाँ पे 192.168.1.0 स्लैश करके 25 दे दिया. As per the value of CIDR, इसमें हमें 128 IP एड्रेस मिल जाएगा. Is that correct? स्लैश 25 का मतलब है 128 IP एड्रेस आप यूज कर सकते हो. इसमें हमने इस IP एड्रेस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, which is subnet HR and another is subnet IT. ठीक है, सेम IP को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, बिकॉज यू नो दैट आप केवल VNet से विदाउट सबनेट आप पहली चीज तो VNet तैयार ही नहीं होगा और हम कोई इंस्टेंसेस भी नहीं ऐड कर पाएंगे. मतलब जो इंस्टेंस ऐड करने का मतलब है उसके लिए आपके पास सिस्टम में सबनेट्स का होना जरूरी है. अब जब आपने HR और IT दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, इट मींस दैट दोनों के हिस्से में 64 IP एड्रेस मिल जाएंगे. 64 इसके पास, 64 इसके पास. इज दैट करेक्ट? यस. एज्यूर की कंडीशन की बात करें तो आई थिंक 5 IP एड्रेस रिजर्व. हर एक सबनेट में 5 IP एड्रेस को एज्यूर जो है रिजर्व करके रखता है. इज दैट क्लियर? यस. रिजर्व इसलिए करता है क्योंकि जो बैकएंड में डिवाइसेस है ना, उन डिवाइसेस को IP एड्रेस वो आपके ही अकाउंट से प्रोवाइड करेगा ताकि आपको भी सिक्योरिटी का कंसर्न ना हो. तो 5 IP एड्रेस कम कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास लगभग 59 IP एड्रेस के आसपास मिल जाएंगे. 59 IP एड्रेस का मतलब ये है कि आप इसमें 59 डिफरेंट PC, 59 डिफरेंट डिवाइस यानी वर्चुअल मशीन को आप अटैच कर सकते हो. ये अपने पास इंस्टेंसेस हो गए, वर्चुअल मशीन्स हो गई जिसको हम अपने सबनेट में अटैच कर सकते हैं ना. अब अगला पॉइंट क्या करते हैं इसमें, अब आपका जो NSG है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, वो इंडिविजुअल इंस्टेंस से जोड़ने से बेटर है कि आपने HR में उठा करके क्लास NSG को अटैच कर दिया. इज दैट क्लियर? यस. अब क्लास NSG में अटैच करने का मतलब है कि यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट सबनेट तक तो आ जाएगी, बट सबनेट जो है इसको आउटबाउंड या इनबाउंड संभालेगा. आपने यहाँ से सारे पोर्ट्स अलाउ कर दिए, 65,000 अलाउ कर दिया. आपने इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों को अलाउ कर दिया, पूरा पोर्ट ओपन कर दिया वर्चुअल मशीन के केस में. लेकिन ये जो पोर्ट अलाउ है ना, ये सिर्फ यहाँ तक आएगा, सबनेट तक. सबनेट में आपने दूसरा NSG लगा रखा है. अब ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्ट अलाउ करे, कौन सा पोर्ट डिनाई करे, और यहाँ का चेंज आपके सभी वर्चुअल मशीन पे एक साथ इम्पैक्ट करेगा. इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है यहाँ तक? Yes. Yes. आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन एज वेल. एक NSG हमने तैयार कर रखा है. लेट मी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और उसी में हम दोनों पार्ट कवर कर लेंगे. सबनेट के साथ अटैच करना और वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना, दोनों ऑप्शन चेक कर लेंगे. लेट मी क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन में क्लिक करने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर. नॉर्मल मेथड है, जैसे नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, एज इट इज विल प्रोसीड टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन. बट जो सिलेक्शन है, जहाँ पे NSG का सिलेक्शन करते हैं, वो हम चेंजेस कर देंगे. वहाँ पे web is our computer name, virtual machine name. I'm not going to proceed with any failover. Username and password, जो common username and password है. (3389), this is the logical port जो हम allow करना चाहते हैं. I don't want to make any changes here. Next, क्योंकि हम अपना खुद का NSG प्रोवाइड करेंगे, that's why none कर दिया वहाँ पे. अब नेटवर्किंग के पैनल पे you must need to select your own logical port. क्लास VNet, ये हमारा VNet था, और यहाँ पे आप जाएंगे एडवांस पे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे क्लास NSG
एंड अनफॉर्चुनेटली क्लास एनएचडी में कोई भी पोर्ट हमने अभी अलाउ नहीं कर रखा, ना इनबाउंड में ना आउटबाउंड। इसका सिलेक्शन करने के बाद वी जस्ट नीड टू प्रोसीड नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। इंस्टेंस में हमने अपना खुद का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया। Once our virtual machine is ready to use, we'll proceed for the next step. Our virtual machine is ready to use. Open VM और यहाँ पे RDP एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। Let's try to connect our virtual machines RDP to Bastion. ठीक है, 3389 पोर्ट हमारा ऐड नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। पब्लिक आईपी एड्रेस हमें ऑथराइज कर दिया है एज़्योर ने, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एक्सेस ऑफ इनबाउंड, तो हमें इसका आरडीपी नहीं मिल पाएगा। पब्लिक आईपी एड्रेस अपने पास है, प्राइवेट आईपी एड्रेस अपने पास है, बट ड्यू टू एनएसजी वी आर अनएबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। सो अगर आपकी अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो जैसा पहले हमने डिस्कस किया था, व्हाट वी नीड टू डू, we must need to connect, we must need to manage inbound port. ये inbound security rules में आएंगे, we just need to click add inbound rules. Source, we have option of source in the sense कि जो बाहर का बंदा है, कौन कौन से बंदे या कौन कौन से लोकेशन के क्लाइंट्स हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अलाउ फॉर एनी, बिकॉज दिस इज द वर्चुअल मशीन जिसको हम ऑथराइज करना चाहते हैं सभी क्लाइंट्स के लिए। सोर्स पोर्ट रेंज, उनका पोर्ट रेंज क्या होना चाहिए, यू कैन जस्ट प्रोसीड विद ऑल, नेक्स्ट, एनी, और यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर डिसाइड कर देना है कस्टम में जाकर के, allow and deny, this is the priority. So what do you think about the priority in case of Microsoft? I mean, that's a level of priority. I mean, if there are two rules are given, one has 100, another is 200, so 100 will be go first. Means low priority जिसकी होगी वो एक्सेस कर लेगा, वो applicable हो जाएगा। No, higher priority, sorry. Higher priority, wait, okay. For example, यहाँ पे अपने पास we have we want to allow the RDP 3389 को हम पोर्ट अलाउ करना चाहते हैं। I'm going to proceed with 100 priority, right? Yeah. We'll create another inbound rule,
एंड अनदर इनबाउंड रोल में हम डिनाई कर गए और जो प्रायोरिटी है उसको 110 कर देंगे, तो विच वन इज एप्लीकेबल? 110 will be applicable. ओके, एक्चुअली जस्ट वांटेड टू क्लियर, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी केस में जो नंबर कम होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। Oh, okay. Oh, ठीक है, all सेम right. सेम एक्टिविटी आपकी एप्लीकेबल होती है किस केस में? जब आप ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं तो उस केस में जो लोअर प्रायोरिटी होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है ना, वो एप्लीकेबल हो जाता है। Okay, okay. ठीक है, सो वी सक्सेसफुली एडेड पोर्ट नंबर 3389 जिसकी प्रायोरिटी 100 है। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर पोर्ट और उसकी जो प्रायोरिटी है वो 99 कर देंगे या 95 कर देंगे, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पस, राइट? सो एक बार पहले कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा हमारी वर्चुअल मशीन पे या नहीं, बिकॉज आफ्टर एडिंग द पोर्ट नंबर 3389 हमें इसका आरडीपी मिलना चाहिए, राइट? एंड वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ आरडीपी। आप देखिए यहाँ पे आरडीपी का पैनल आ गया, इट मींस दैट हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वी आर एबल टू एक्सेस द आरडीपी, इज दैट करेक्ट? Yes. Okay, cool. So do one thing only for the testing purpose, because our agenda to understand about the network security groups and options, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि ये लो प्रायोरिटी को फाइंड करता है, ना कि हायर प्रायोरिटी को। कस्टम में गए, यहाँ पे आरडीपी एक्सेस किया और दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिनाई इट, ठीक है, और प्रायोरिटी में 95 कर दिया। ओके, वी मस्ट नीड टू प्रोवाइड मिनिमम 100। 101, ओके, और जो अलाउ किया था उसकी प्रायोरिटी को हम कर देते हैं 110। डिनाई की प्रायोरिटी हमने कर दी है 101 और अलाउ की प्रायोरिटी हमने कर दी है 110। सो माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग जिसकी प्रायोरिटी लो है ना वो अप्लीकेबल हो जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसका काम, उसका टास्क वो अप्लीकेबल नहीं होगा। All right. So it will not execute because the higher priority is 101. एग्जैक्टली, हमने इसका अब प्रायोरिटी जो है ब्लॉक कर। लेट मी डिस्कनेक्ट इट और एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हमने प्रायोरिटी उसकी लो कर रखी है। 101. Yes. यू वांट टू मेक चेंजेस, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 110 है, ये 101 है, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ डिनाई, इसको 120 कर देते हैं, सिंपल। या फिर आप डिनाई भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट वी मस्ट नीड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने एक्सेस किया है अपने वर्चुअल मशीन के साथ, so what we need to do, we just need to associate our NSG with VNet, not VNet, with our subnets. Okay. क्लास VNet अपने पास है, ऑलरेडी बना है, क्लास VNet पे हमने क्लिक किया क्योंकि इंस्टेंस भी हमारा क्लास VNet में ही रन कर रहा है, एंड अंडर द क्लास VNet we just need to select subnets. सबनेट्स में HR सबनेट में इंस्टेंस रन कर रहा है, HR सबनेट को ओपन कराएंगे, एंड अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में, HR सबनेट की प्रॉपर्टीज में दूसरा ऑप्शन, एक है नेट गेटवे, दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसको किया और क्लास NSG को हमने अटैच कर दिया एंड से, ठीक है।
इन रियल इन्वायरमेंट जब भी हम बात करते हैं, इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट, हमें दोनों नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को सेपरेट रखना है। जो सबनेट में आप अटैच करेंगे वो अलग रहेगा, जो आप इंडिविजुअल इंस्टेंस के साथ अटैच करेंगे वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। Come again, please. Repeat करना. हाँ, इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट, जो NSG है, यू मस्ट नीड टू यूज मोर देन वन NSG। एक NSG जो VM के लिए होगा और दूसरे NSG आप डायरेक्टली किसके लिए एसोसिएट करेंगे, सबनेट के लिए। Okay. VM की सिक्योरिटी सेपरेट रहेगी, हर एक VM अपने अकॉर्डिंग इनबाउंड आउटबाउंड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें पूरे सबनेट की, तो सबनेट के केस में एक ही सेटिंग सबके लिए एप्लीकेबल होगी। Okay. This is the concept of subnet. This is the concept of NSG, Network Security Group. Any question or doubt, please let me know. It's okay. ठीक है, ये बोल सकते हैं अपने नेटवर्किंग का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। Next, can we proceed for next? Yeah, please. Another important point, another important topic of networking is. Manjeet, I'm sorry to interrupt you. Can I ask a question? Yeah, please. जो NSG है, right? We put on the subnet and we put on the VNet. अगर हमारे पास कोई database है, so can we put on the instance level? Database instance label means virtual machine में आप अगर database establish कर रखे हैं तो definitely we can add it. Okay. और हमें Because of the more security, अगर वो internal purpose के लिए use करना है, जैसे master slave है, तो by chance सिर्फ 1% can access that database, तो वहाँ पे अगर हम NSG apply करते हैं, तो that will be more secure or exactly, there is no need? Yes, बिल्कुल. Okay, fine. Thank you. इस केस में हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि किसको अपने नेटवर्क डेटाबेस का एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है. वी हैव ऑप्शन टू डिसाइड इट. NSG इसमें हमारी हेल्प करेगा. क्लियर? Yeah, please. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज रियली we need to understand about the concept of Bastion, which is really important. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि what is Bastion, and after that we'll proceed for the next step. I think VM के केस में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, we have a 3 different way to create to connect our virtual machine, I think, right? Yeah. For example, we have a Bastion, and Bastion can give us option to Bastion के केस में हम क्या कर सकते हैं? This is our virtual machine. We can connect our virtual machine using 3 different way. One is RDP, second is SSH, and third one is Bastion. I was reading when I was doing Ansible, then because SSH they use remote server. So remote servers, तो अगर by chance किसी एक का अगर access मिल जाता, they can access every system. So they use the Bastion in Ansible. I mean to connect with the master and the other system or remote login.
I think so. Yes, exactly. What happened in case of अगर आप SS तो सिक्योर नहीं होता ना ज्यादा. नहीं अगर टेलनेट credential. नहीं, SSH सिक्योर होता है, टेलनेट सिक्योर नहीं होता. Okay. टेलनेट को बंद करके टेलनेट का यूज अब नहीं करते. टेलनेट की जगह पे यूज किया जाता है SSH. But SSH SSH के अंदर बाय चांस अगर क्रेडेंशियल मिल जाएंगे तो एनीबॉडी कैन एक्सेस इट. हाँ, वो तो सभी के केस में है ना, वो तो सभी के केस में है, नॉट ओनली कि इन केस ऑफ SSH. अगर हमें RDP के केस में क्रेडेंशियल मिल गया तो डेफिनेटली उस केस में भी हम एक्सेस कर सकते हैं. कोई उसमें भी एक एक्सेस. लिखा हुआ था पोस्ट की द बास्टियन नाउ कंपनी दे यूज द बास्टियन टेक्निक. तो ये अभी पढ़ा नहीं था मैंने, सो दैट्स Okay, let me explain you about the Bastion का इस्तेमाल एक्चुअल में क्यों किया जाता है. Bastion can give us a lots of security in compare of our SSH and RDP. इन दोनों के कंपेयर में Bastion ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर Bastion के केस में अगर कोई भी बंदा यूजर आईडी एंड पासवर्ड पा भी जाता है ना, तो अनेबल टू एक्सेस. ठीक है, अनेबल टू एक्सेस इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं रहता, और Bastion की सर्विस को आप केवल और केवल Azure पोर्टल के थ्रू ही हैंडल कर पाएंगे. मींस जब आप पोर्टल ओपन करेंगे, एक यूजर आईडी पासवर्ड इसका लगेगा आपको. ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये आपका Azure आईडी की बात कर रहे हैं हम. प्लस जब आप इंस्टेंस के Bastion पे जाएंगे ना, इंस्टेंस एक्सेस करने के लिए फिर अलग से आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा. ठीक है, इवन आप इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, MFA लगा लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप पोर्टल ओपन नहीं कर पाएंगे तो इंस्टेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. ओके. अगर आपको इंस्टेंस पे पहुंचना है तो पहले पोर्टल लॉगिन कर पाएंगे. पोर्टल लॉगिन होगा, पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप यूजर पे वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ही आप एक्सेस कर पाएंगे. और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड अलग से लगेगा. Okay. In the case of AWS, it's MFA. They use the same technique, MFA. Sorry. In AWS, Amazon, they're using the same technique, MFA, or something else. नहीं, if we talk about the usage of MFA, तो हर जगह पे MFA का यूसेज सही रहता है, बट सेम ही रहता है, बट प्रोसीजर की बात करें तो थोड़ा सा अलग है. Okay. इन केस ऑफ AWS, उस केस में अगर आपको MFA इस्टेब्लिश करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, उस केस में यू मस्ट नीड टू डाउनलोड वन ऑथेंटिकेटर ऐप, जिसको गूगल ऑथेंटिकेटर बोलते हैं, और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए आप एक्सेस कर पाएंगे. Okay, fine. क्लियर. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Bastion. और Bastion में क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू क्रिएट मोर देन वन सबनेट. आपके पास आपका खुद का VNet होना चाहिए. ठीक है, VNet शुड बी कंटेन 2 सबनेट. एक सबनेट आपका रहेगा वर्चुअल मशीन के लिए, दूसरा सबनेट आप तैयार करेंगे Bastion के लिए. एंड वंस Bastion इज रेडी टू यूज, आप अपने वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस को रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. सो यहाँ पे अपने पास इंस्टेंस भी है, VNet भी है, सबनेट भी है. तो लेट मी प्रोसीड एंड क्रिएट, और चेक करते हैं कि कैसे ये काम करेगा. बहुत ही बेसिक सा फंडा है. सबनेट VNet अपने पास है. लेट मी शो यू द VNet एंड VNet कैपेसिटी. क्लास VNet है, और क्लास VNet के अंदर जस्ट गोइंग टू चेक. सबनेट्स पे क्लिक किया, और सबनेट पे क्लिक करने के बाद HR सबनेट 26
और एड्रेस स्पेस की बात करें तो हमने यहाँ पे 25 यूज किया है, मतलब 128 आईपी एड्रेस में we used only 25, हमने ये केवल इस्तेमाल किया है, करेक्ट. So it means that we have a 64 IP address remaining. कुछ भी नहीं करना है, we just need to open our virtual machine और ओवरव्यू पे जाएंगे, सबनेट होना चाहिए, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, बैस्टियन पे क्लिक कर देंगे. और बैस्टियन पे क्लिक करने के बाद it will take up to more than 10 minutes. तो आपने क्या करना है, I want to configure Azure Bastion on my own, create Azure Bastion using default. तो दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई से भी ऑप्शन आप प्रोसीड करेंगे. क्रिएट Azure Bastion यूजिंग डिफॉल्ट, मतलब जो इसके पास सबनेट है उसी का इस्तेमाल करके क्रिएट करना है, सिंपल सा क्लिक कर देंगे. Bastion is in progress, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मिनट टाइम लगेगा इसमें. Bastion रेडी होने के बाद we will access our virtual machine to the URL.
Okay, Bastion is ready to use. It will give us option. Directly हम इस पे user ID and password mention करेंगे and click करेंगे. Simple. Okay. आप देखेंगे कि इंस्टेंस जो आपका कनेक्ट हो रहा है ना 3389 पोर्ट एक्टिवेट नहीं है, फिर भी आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि ये ब्राउजर पे जा रहा है, RDP पे नहीं जा रहा है. Alright. ठीक है. इवन अगर आप बैकएंड में जा करके वी आर एबल टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन, दिस इज आवर VM. थोड़ा सा टाइम लग रहा है. अगर आप अपनी VM में जा करके प्रॉपर्टीज में नेटवर्क में जा करके पब्लिक IP एड्रेस को रिमूव भी कर देते हैं ना, तब भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट द पब्लिक IP एड्रेस, डीएसोसिएट कर देते हैं. Okay, there was a quotation written out there. The Azure charges extra amount for the Bastion. For the subnet, for the private IP address that you are using in Bastion. Okay, so it will be more than the public IP or less? No, less than public IP address. Okay. So instead of the public IP address, we can use the Bastion services. हाँ, exactly. हर एक organization भी prefer करती है कि you should use the Bastion because in case of Bastion, public IP address और normal credential, क्योंकि जब आप अपने VM को public IP address के through access करते हैं, चाहे वो SSH हो या RDP, उसमें अपने पास केवल एक security रहती है, user ID and password, correct? Means अगर user ID there is another question. अगर कोई बाहर से एक्सेस करेगा तो उसको तो हम यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर कोई पब्लिक उसके पास अगर यूजर आईडी पासवर्ड है भी ना तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हमने पब्लिक आईपी एड्रेस ब्लॉक कर रखा है. No. If just say that's a general website is there and anybody wants to access that website, so is it possible to access that PC or not? I mean that VM or not? No. VM or website both are different to each other. नहीं, अगर वेबसाइट एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर हम लोड बैलेंसर लगाएंगे और उस LB के थ्रू उस वेबसाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस अपने पास नहीं है. हाँ, that's my question. अगर मैं पब्लिक Bastion सर्विस प्रोवाइड एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब they provide me Bastion सर्विस instead of the IP address, public IP. अगर public IP नहीं है तो how they can access our website? हाँ, तो that time load balancer come into the picture. LB आएगा या फायरवॉल आएगा जिसमें हम प्राइवेट आईपी एड्रेस को नेट गेटवे के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ आवर फायरवॉल. ओके, ऑलराइट. VM में तो पब्लिक आईपी एड्रेस है नहीं, तो हम फायरवॉल की पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? यस. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Bastion. और इसमें फिर नेटवर्किंग में एक और चैप्टर बचा अपने पास विच इज VPN, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. VPN और लोड बैलेंसर हो गया है हमारा. सो VPN कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसमें फायरवॉल का लोड बैलेंस पे बाकी था कि I mean there is one thing left. I'll check on the notebook. I have written over there. हाँ, प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि VPN कंप्लीट करना है और VPN कंप्लीट करने के बाद we'll proceed for the next step, next module basically. और next module हमारा होगा I think कंप्यूट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ADB हो गया, स्टोरेज हो गया, राइट? तो लास्ट जो अपने पास मॉड्यूल है वो है बैकअप एंड रिस्टोर. सॉरी, बैकअप एंड रिस्टोर. ओके. ठीक है. सो विल ट्राई टू फिनिश ऑल द कंटेंट इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में. इस वीक में वैसे पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि VPN थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में. क्लियर? डन करें आज के लिए इतना? ओके, थैंक यू. विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम. रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ आपको जैसे कि.